Welcome to you all to the inaugural lecture of Saturday lecture series of Gyanalok Trust. Today we have our beloved speaker, Professor Sanjay Bhatt. Professor Sanjay Bhatt is the former professor from Department of Social Work, Delhi University. After completion of his PhD in social work from Lucknow University, Professor Bhatt was professionally associated with different institutions like Lucknow University, World Bank, Kashi Vidyapeeth, Kurukshetra University, Chitrakoot, Gramodoy University, and Delhi universities. He has more than 3 decades of professional career in the field of teaching and field level implementation. Professor Bhatt published over 20 journal articles and book chapters in different reputed international and national journals and books. He has completed more than 20 projects as a principal investigator and delivered over 100 talks in different seminar, workshops, and webinar. As an editor, he is associated with a number of reputed journals, and he is the managing editor of Journal of Social Work Education, published by National Association of Professional Social Workers of India. He is a live member of number of number of national and international organizations like INPSWA, APASWE, SOHAM, and many more. He was the former president of National Association of Professional Social Workers in India, and currently Professor Bhatt is heading the campaign committee for National Council for Social Work in India. On behalf of all the participants and Gyanalok Trust, I welcome Professor Bhatt to kindly consent us and to being a part of us with the inaugural lecture of Saturday lecture series of Gyanalok Trust. So today's topic that Professor Bhatt is going to deliver is social work in India, what needs to be done to establish the profession. Now I request Professor Bhatt to address the audience. Thank you. Thank you, Pradeep ji. Thank you very much for introducing me. And first of all, thank you, Gyanalok, for initiating Saturday lecture series, which I understand that you are going to run it for 4 or 5 months. Yes. And I am fortunate that you have given me the chance to inaugurate this lecture series. We are also, sir, privileged to have you as the inaugural lecture of our series. Yeah. So once again, thank you, Gyanalok, and thank you, Pradeep ji and your team, who has been kind enough to think about me and to invite me. Friends, the topic for today is how to strengthen the social work in the country. After 87 years of our existence, right from 1936 to 23, we are struggling with the question of recognition, the question of not being given adequate attention, the question of somewhere of self-doubt that, whether we are competent to be professional or not. There are many questions. And these questions are bound to happen. So before we go into the details of these questions and probable answer what we should do, we have to little bit look back that how the social work came in picture and what is our genesis, how we have grown up, what is our nature,
what is our purpose, and what is the dimension of social work in India. You know, professional social work is basically based on the democratic values. We are based on humanitarian philosophy, and the central focus of our profession is human relationship. Human relationship and human dignity. We draw our strength from social service traditions of this country, social service traditions of different religions, constitutional commitments, the national and international covenants related to the human rights and social justice. And of course, we have drawn our knowledge from different social sciences and also some of the physical sciences. The social work profession operates at all the three levels: macro level, meso level, and micro level. And our understanding is that we work for the policy change, while our focus is on working with individuals, groups, communities, and families, provide the services to the people, and we enrich our social institutions, our systems at all levels. We do care about culture. We are culturally sensitive, responsive institution, and we aimed at individual and social well-being. All of you know that social work is practically more concerned, I'm emphasizing here, more concerned with the empowerment of the vulnerable, oppressed, marginalized section of our communities. And we work for the social change, sustainable development through participatory and collaboratory processes with the people in need. We work with the people directly through organizations, with and without help of the state. So friends, this is what Indian definition is. You can find this definition at the NAPSWI website. NAPSWI is one of the frontal professional organization of professional social workers in this country. We have our website which called www.napswi.org. You can find this definition. You will be wondering why I am giving you this definition, because I want to tell you the nature of social work, that we work for the human relationship and human dignity, and at different levels with different institutions, with the purpose of change, with the purpose of development, with the purpose of empowerment. So friends, social work has passed through in 87 years, right from charity to welfare, welfare to development, and development to empowerment. So you can understand these four, stages. If you will recall, we call our this welfare sector, or in early days, time of independence, or even before that, voluntary sector, because welfare is being governed by the voluntarily. There are many people who works voluntarily for the welfare. So we can say the institution of welfareism,
And with the welfareism, we want to work with people. So we have a history of welfareism. And their voluntary people used to come. That is why we used to call it voluntary sector also. And organization we used to call voluntary organization. But slowly and slowly, we started realizing that social welfare is not everybody's cup of tea. There is a difference in social services and organized social welfare system. So we started preparing people, teaching people, training people, and then we have a course like MSW. So the whole idea of having the course MSW, which of course I have no denial that it has been drawn from the Western society. But when it operated in India, it started absorbing and giving signals that it bothers about its community. So it started indigenizing. Slowly and slowly it started having more indigenous way, more domestic ways, right? Now, having said so, this romantic version of welfare that we will provide this, we will give this to the people, to the opening up of the globalization and this change in the model of delivery of services, in between the emergence of non-governmental organization, the sector has become non-governmental sector. It started being called as development sector. So from welfare to development, and now with development to the empowerment. Profession has also grown up. In first few years, if you ask me, in first 50 years, profession has not grown up that much. There were hardly 40-50 institutions which was providing MSWs. State like Odisha, Bihar, Jharkhand, not even a single school at that time. So after 50 years of introduction, not even a single school, single institution to train the social workers. Now, today, after 87 years, we have social work education in all the states. Further, we have social work education through distance mode of learning, through Indira Gandhi National Open University and many of the state open universities. We have also started now online courses in social work. Very recently, this year only, Indira Gandhi National Open University has started. Then we have a lot many MOOC courses on the SWAYAM portal. It used to be in Coursera in Western societies. Coursera is a platform, but now in India we have an India government portal SWAYAM, where you can find many MOOC programs, many lectures, many videos. Now, having said this, that social work has expanded. In 2015, I did a census, Jangarna, of all institutions of social work. I found there were 526 social work institutions in country. Very recently, I have done a study on finding out the volume of social work people. How many social work people in this country? So I have taken the help of data which has been with the government institution called All India Survey on Higher Education. There have been 181 universities, roughly 20% universities. They are giving social work education and training at different level. And more than half of the institution,
59% now teaching undergraduate courses, more than 95% teaching postgraduate courses, and 22% students in BSW program and 34% students in MSW program. They come from distance mode of education. And you will be surprised to know that in last 8-9 years, we have added around 4 lakh social workers. Only in last 8 years, 4 lakh social workers. So this is the size and volume of our, but you will be surprised to know that we are most unorganized people. We talk to organize the people, at different level. One of our important method is community organization, right? We do community organization. We organize the community, but we ourselves are hardly organized. So when you have asked me the question, what we should do to strengthen the organization, my first observation is that we have to organize the professionally qualified social workers under some banner. You will be surprised to know that there is no dearth of banners. There are too many banners. I mean, there are too many organizations. At least 4 organizations which are at the national level. Are you getting my voice? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I was trying to say that the first point of strengthening this profession to getting recognition is organizing the social worker themselves. If we are able to organize social workers, we will be able to reach out to the people, those who are our main stakeholders. You will surprised to know we have 4 national level professional organizations. NAPSWI. One is Indian Society of Professional Social Workers, which has now 2 branches, one in North and one in South. Unfortunately, they have divided in 2 parts. Then there is another organization, All India Medical and Psychiatric Professional Social Workers Organization. And 4th is Indian Network of Professional Social Work Organization. And at least 20 state level organization. So organizations are too many, but people organized under them are not even 1 lakh. Forget 1 lakh, not even 10,000. Forget 10,000, not even 5,000. This is the bad and sad commentary on the profession. So what you have to do if you have to get the recognition, first thing we have to do, we have to organize the people. If you ask me, we have started organizing people from last 10 years. We have started a program called Indian Social Work Congress, भारतीय समाज कार्य सम्मेलन. पिछले 10 सालों से देश के विभिन्न शहरों में ऑर्गेनाइज करते हैं. NAPSWI is one of the highest number of members organization. So what we need a professional organization. The organization who can take your voice and can tell the stakeholders. Who are our stakeholders? First government, then civil society sector, right? So we need to make our voice clear and tell people what we are doing. Second point is what we should do is very important. Like any other profession,
we should start thinking not only in terms of degree that we have MSW, we have BSW. What else we have beside BSW and MSW? What make you distinct? आपको क्या ऐसी चीज है BSW और MSW में जो आपको दूसरे विषयों से विभिन्न बनाती है, which makes you different from other subject? That is important. आप कहेंगे फील्ड वर्क, राइट? फील्ड वर्क है, लेकिन फील्ड वर्क कुछ और सब्जेक्ट में भी होता है, तो आपका फील्ड वर्क कैसे आपको अलग बनाता है लोगों से, वो इंपॉर्टेंट है। उसको हमें लोगों को बताना होगा। कुछ लोग फील्ड वर्क को समझते हैं कि जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज तक ये नहीं समझ पाई हैं कि फील्ड वर्क कैसे होता है, क्यों होता है, इसको इवेल्युएट कैसे किया जाए। तो आज की तारीख में जरूरत है कि अपने विषय के बारे में सबसे पहले उन लोगों को बताना जो इसके साथ हमारा विषय जुड़ा हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, IAS officers, director of the social welfare, director of child welfare. We have to tell them. We have also to tell the civil society organization, NGOs, that how we are distinct. What is our specialty? What is our specific qualities? What we do which others cannot do? We are not able to make it. In definition, I told you that social workers talk of social change, sustainable development. This society is a society of evidence. Can we give certain evidence that what change we have brought, how this change have been brought, what development we are doing, how we are helping, sustainable development? So to tell this, you need documentation. You need proof. You need write-up of your work. If you are helping a drug addict doing counseling, where is the record that you have done counseling and the person who was suffering with the drug addiction has improved? Where is the write-up? Where is the proof? Where is the evidence? Where is the document? We are very poor in that. We have to do it. Most of social workers are in organized system. They are in employment, either of government or of NGOs. So most of them are doing job, employment. Very few go for the action orientation, bringing change, running movement, like Medha Patkar, like Santarang Nathan, like Pandurang Hegde. अब इसमें से बहुत सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए. There are two chief ministers in the country, those who are MSW. There is two ministers, central ministers, one central and one state minister, which has an MSW. There are 4 members of parliament who are MSW. So what I'm trying to say that we should know and we should connect with the people. Third very important thing is that we should do the networking. We should do the networking with whom? Networking among ourselves first, with the social work people first. We should know how to do the networking, to whom we should contact. We should tell the people that networking is required, right? So we require the networking with people. If we are able to do that,
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, Now you it is are audible. audible. Yes. Right. Yes, sir. Sometimes Third thing I was saying that we have to do the networking among selves. Networking with our institution. How many of you have done MSW, BSW, and you have a contact with your school of social work, with the social work institution, or with your college, or with your teachers? Hardly 2-3%. We don't keep contact. The moment we come in employment, we forget our university. And neither university bothers about you. So it's this two-way relationship. I also call, if there are head of the departments of different, any college or principal of any college, I must tell you that it is two-way process. We have to strengthen our alumni association. We have to connect. There is an old principle, Sangthan mein Sakti. So we have to create that Sangthan. If we are not able to create that Sangthan, we will not able to do that. Right? So we need to create the Sangthan and we have to provide the power. Many years ago, when I used to ask these people, how many people we have, how many social work graduates, nobody has exact number. Then I did research, published a paper. I came to know that there are more than 4 lakhs only in past 8 years. So if I take 20 years back, there must be 6-7 lakhs people, those who are MSW and PSW. We should know this. Unfortunately, we do not know. How we will know? I don't know. How we will organize? I don't know. But we need to organize ourselves. We need to organize ourselves. This is the time when we have to organize ourselves. If we don't do that, fourth thing is sharing information. The most important part of life is sharing and caring. Share and care. Like a family. What is the characteristic of a family? Share and care. So what you should do? Share and care. Share what? Information. Share what? Your problem. Share what? Your issues. You must share with the people. If you are able to share, probably you will get answer. So we are not sharing information. In the time of this technology, where WhatsApp, Twitter, Facebook, if you go on Facebook, there are quite a good number of social work groups, but not very active. You don't find all information there. You go on the app store. There is hardly any app for social work people, by social work people. There are hardly any channel which continuously feed social work people. We don't share information. We don't share our experiences. Friends, when I was retiring 5-6 months back, I decided that I will start a channel. So I started a YouTube channel, Social Work Herald. I share my experience on social work, almost on 10 days or 15 days interval. You know how many people watch it? Even less than 1,000. If we are 8 lakhs people, at least there must be 8,000 people to watch this. So we do not have a culture of sharing. Unless we develop this culture, we will not be able to strengthen the social work. You ask anyone how to get recognition of social work.
people will say we should have a council. Council is not a jadoo ki bansuri. It is not a dum-dum which will solve your all problems. Of course, council will be important. If we have a council, we can get rid of with some of our problem. At least courses will be standardized. At least we will have a national register for social workers. Many things, many benefits. But why we do not have council? Precisely 3 reasons. Number 1, that we are not organized. There is hardly any pressure from the professionally qualified social workers. Hardly any pressure. I am running a movement which has been stopped from last few months. A campaign. During COVID period I started with the help of many of my senior friends. With the blessings of Professor Almighty Desai and my friends like Murli Desai, Gandhi Das, Devi Prasad, Astos Pradhan, Bipin Jojo. So many of my friends, I'm not able to take everybody's name. Many friends, they joined together. We started discussing. We prepared a bill. But Education Minister is from your state. He is not even responding to the letters. What you need connection, you need pressure. Somebody have to go and to tell the Education Minister why it is important. Second reason of not having council is we are complacent people. संतुष्ट व्यक्ति, नौकरी मिल गई संतुष्ट, क्या करना है प्रोफेशन से? We are complacent in our life. Complacent people never brings change. They never bring change. So complacency is one factor among professionally qualified social workers that we are not getting counsel. Third, our name, social work. In this country, every second person is a social worker. Every politician, every third politician is a social worker. The person who is not doing anything, he can write social worker. So it get clashed. There is a clash. But this region is not that big region. The biggest region is with us in our community. हमारे घर में दिक्कत है. हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं. हम एक जैसा नहीं सोचते. हमें कहने में अच्छा लगता है कि काउंसिल हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि दूसरा बना दे. हमको ना करना पड़े. आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक गांव में पानी नहीं बरसता था, तो एक बाबा जी आए वहां पे. गांव के लोग गए, बोले पानी नहीं बरसता. बोले बरसेगा. सब लोग जाओ और एक एक लोटा दूध तालाब में डालो, कुएं में डालो. सबने सोचा कि अरे सब लोग तो दूध डालेंगे, तो सब लोग पानी लेके पहुंच गए. उसमें दूध का नामो निशान नहीं था. तो हर कोई चाहता है कि कोई दूसरा कर दे हमारे लिए काम. कभी बैठ के सोचिएगा, क्या आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं? क्या आप एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखने के लिए तैयार हैं? क्या एक चिट्ठी माननीय धर्मेंद्र प्रधान को लिखने के लिए तैयार हैं कि सोशल वर्क की एजुकेशन से मुझे ये फायदा हुआ और इसके लिए एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद होनी चाहिए? एक चिट्ठी सिर्फ. अगर चिट्ठी भी नहीं लिख सकते तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का ईमेल आईडी देखकर एक चिट्ठी उनको ईमेल भेज सकते हैं? अगर 10,000 ईमेल जाएंगे ना धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, तो सोचने के लिए मजबूर होंगे. तो अगर प्रोफेशन को रिकॉग्निशन दिलानी है, स्ट्रेंथ दिलानी है, तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है, किसी और को नहीं. किसी और के भरोसे नहीं मिलेगा. 87 इयर्स में क्यों नहीं हुआ, उसका भी जवाब.
पहले 50-60 साल तो हम बहुत थोड़े से लोग थे, बहुत थोड़े से मेरा मतलब है कि केवल 35-40 सोशल वर्क की इंस्टीट्यूशन थी। अगर औसतन मान लें कि हर स्कूल में 50 लोग पढ़ते थे तो हर साल 2000 लोग बाहर निकलते थे, और 2000 सोशल वर्कर्स को इतने बड़े देश में नौकरी मिलना कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। तो शुरू के 50-60 साल तो हमारी संख्या ही बहुत कम थी। ये तो 21वीं शताब्दी की देन है कि सोशल वर्क इतना बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है ना, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 86,000 people have taken admission in BSW and MSW programs. उससे पहले 1,25,000 लोग BSW और MSW में एडमिशन लिए। तो कहां है वो लोग? अगर वो सामने नहीं आते, इसका माने संतुष्ट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफेशन में काउंसिल है या नहीं है। ये बातें मैंने हिंदी में इसलिए बोली हैं कि मुझे पता है आप में से काफी लोग हिंदी भाषी लोग हैं। तो अगर हमें मान्यता दिलानी है अपने आप को, अगर हम चाहते हैं कि हमको कोई रिकॉग्नाइज करे, पहचाने, तो पहले पहचान हमें खुद बनानी होगी। जैसे ये प्रयास किया ज्ञानालोक ने, लेक्चर सीरीज करे, तो लेक्चर सीरीज ज्ञान देगी, लेकिन मैं जो आपको कटु बातें बोल रहा हूं कि क्या आपने पास होने के बाद किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ली? आपको वो 2-3 हजार रुपए बड़े महंगे लगते हैं, लेकिन उस 2-3 हजार से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको पता है, काफी संघर्ष के बाद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की वजह से जो बिल आया है एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स का, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, उस एक्ट में एक प्रोविजन आया कि मेडिकल सोशल वर्कर और साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स को बिहेवियरल काउंसिल में गवर्न किया जाएगा। तो जो हेल्थ सेक्टर में लोग हैं ना, जो एम्स में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर्स, वो तो उस काउंसिल में आ गए। लेकिन हम निष्क्रिय रहे। तो पहले हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जो रिहेब सोशल वर्कर काम करते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनने हमारा नाम निकाल दिया। ये जो समाज है, ये जो समय है, ये कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आप अगर अपनी जगह सुरक्षित नहीं करेंगे तो कोई और आके चला जाएगा। इसलिए चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट में वेलफेयर ऑफिसर हो, वहां पे धीरे धीरे लोग दूसरे विषयों के आके वहां पे अपना अधिकार जमाने लगे और सोशल वर्क पिछड़ रहा है। और उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूं, आप हैं। हमारे वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले स्कूल हैं, हमें इस जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। आप इसलिए हैं कि आप पास करके चले गए, उसके बाद आपने मुड़ के भी नहीं देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको ये काम करना ही होगा। उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो मित्रों, मैं थोड़ी सी मेरी वाणी में मैं चाहता नहीं था कि कटुता आए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो मुझे कहने में संकोच नहीं करना चाहता था, और इसलिए मैंने आपसे कहा। तो सोशल वर्क इन इंडिया, भारत में समाज कार्य का भविष्य भी उज्जवल है और पास्ट भी ठीक ठाक था। ये केवल पूरे विश्वविद्यालय सिस्टम में एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 16 से अधिक विषय पढ़ाए जाते हैं, और उन 16 से अधिक विषयों में
हम इंटरडिसिप्लिनरी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में सोशल वर्क पढ़ने वाले विद्यार्थी निकलने के बाद नौकरी पा जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ी नौकरी पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं। इसलिए जब आप ये कहते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन टू एस्टेब्लिश द प्रोफेशन, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप सोचें ज्ञानालोक करेगा, नहीं। आप सोचें उड़ीसा प्रोफेशनल सोशल वर्कर एसोसिएशन अपने आप में कर लेगी, नहीं। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे पूछना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमारे प्रोफेशन को और रिकॉग्निशन मिले। तो मित्रों, जो चौथा पॉइंट मेरा है वो है कि हम नेटवर्किंग के बाद क्या हम रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के? आर वी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग द काउंसिल, डिमांडिंग द काउंसिल? फिर कुछ छोटी छोटी चीजें, क्या हमें पता है कि सोशल वर्कर्स की जो कमिटमेंट है उसके लिए एक सोशल वर्कर की प्लेज है? क्या आपने कभी कोड ऑफ इथिक्स देखा है कि आपके प्रोफेशन का कोड ऑफ इथिक्स क्या है? क्या आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप कहीं शेयर करने के लिए तैयार हैं? तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लिए ये जरूरी है कि हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ना होगा, हमें लोगों को जोड़ना होगा, हमें लोगों को ये बताना होगा कि समाज कार्य ऐसा वैसा चलता फिरता सब्जेक्ट नहीं है, एक विशिष्ट ज्ञान है। अगर अगर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का ज्ञान जरूरी है, तो सामाजिक सेवाओं को चलाने के लिए क्यों ज्ञान की जरूरत नहीं है? क्या वो बिना ज्ञान के किया जा सकता है? क्या मानवीय संबंधों को बिना जानकारी के समझा जा सकता है? हमें ये बताना होगा, हमें लोगों को ये बताना होगा कि आज के समाज में जहां तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं है, विद्यालयों में छात्रों के बीच में जो है ना समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तब आपको एक ऐसे विषय की जरूरत है जो समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ आपको स्ट्रेंथन करने की दिशा दे सके। तो सब्जेक्ट में तो जान है। अभी आपको चलते चलते एक बात और बताता हूं। भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको उठा के देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि स्कूली शिक्षा में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेगा, विद्यालय संकुल। 4-5 विद्यालयों को, एक ज्योग्राफिकल एरिया के 4-5 विद्यालयों को मिला के एक विद्यालय संकुल बनेगा। वो विद्यालय संकुल क्या काम करेगा? कॉमन सेवाएं देगा, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, म्यूजिक, गेम्स। वो विद्यालय संकुल में क्या होगा कि जो विद्यार्थी छूट गए, ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस लाना, पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, पेरेंट्स की जो है ना काउंसलिंग करना, बच्चों को जो क्या बोलते हैं रैगिंग है जी, बुलिंग, उनसे बचाना, बच्चों को कैरियर डेवलपमेंट के अवसर दिलाना। ये स्कूल लेवल पे है। और इन सबको गवर्न करने के लिए कौन होगा? उस शिक्षा नीति में लिखा है कि विद्यालय संकुल को चलाने के लिए एक ट्रेन्ड और एजुकेटेड सोशल वर्कर की आवश्यकता होगी। तो ट्रेन्ड और एजुकेटेड तो आप ही हैं, आपने विश्वविद्यालय से डिग्री ली है, आपने ट्रेनिंग की है। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, आगे आने वाले वक्त में आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि इस अवसर को अगर सोशल वर्कर्स ने नहीं लाभ उठाया तो कुछ और लोग ट्रेन्ड एंड सोशल वर्कर बन के आ जाएंगे।
कहीं से 6 हफ्ते की, कहीं से 3 दिन की, कहीं से 7 दिन की ट्रेनिंग लेके आके बोलेंगे हम ट्रेंड सोशल वर्कर हैं, आप वही रह जाएंगे। सोशल वर्क के विद्यालयों को, सोशल वर्क की शिक्षण संस्थाओं को, सोशल वर्क के जो ट्रेंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड सोशल वर्क के जो संघ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनको और सोशल वर्कर्स को, they have to take a pledge that we will get our students in for these jobs, we will prepare them for those jobs। और अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे नीति लागू हो गई आने वाले 4-5 सालों में, 3.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी कम से कम। 15.5 लाख स्कूल हैं, 15.5 लाख स्कूल में अगर 5-5 स्कूलों का एक विद्यालय संकुल बना तो 3-3.25 लाख नौकरियां कहीं नहीं गई। देखने का दृष्टिकोण है, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे इस चीज को आगे लेके चलते हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो व्हाट नीड्स टू बी डन टू स्ट्रेंथन, एंजॉय द अपॉर्चुनिटी विच आर। उन अवसरों को हाथ से नहीं निकलने देना है, उनको पकड़ना है, उनके ऊपर काम करना है, लोगों को बताना है कि हम सोशल वर्कर्स स्कूल व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण हैं और हम क्या कर सकते हैं। Why we are important and what can be done by us in a school system, how we can change the school in itself। आप सब लोग स्कूल में पढ़े, मेरे स्कूल में तो फट्टी नहीं होती थी बिछाने के लिए, घर से लेके जानी पड़ती थी। अब तो काफी स्थितियां बदल गई। So friends, here I will put my thoughts at rest, and what I have said, I am fully convinced that if you will take this ahead, social work profession will get recognized among stakeholders, among society। There is a need to tell the society that what you after taking a training doing and how it is beneficial for the society. This we have to inform, this we have to tell। So I'm not sure what is the time available for me, but I will put a stop here, and any one of you if want to ask the question, I do not know, Pradeep ji will tell whether there is a question answer session or I will put my full stop here, not full stop, comma, and if you will ask question, I will be very happy to answer you। Thank you very much for listening this talk। So anybody want to sin? They can write in chat box। Yes, you can write or directly. They can sir raise their hand and ask the question. No one। Good evening, sir. Yes। Yes, yes. I'm Amit Mehta from MSc University, Baripura। हेलो। Yes, हाँ yes। सर, आपने बोले कि 2 चीफ मिनिस्टर जो है वो MSW बैकग्राउंड के है, थोड़ा उनके नाम बोल सकते हैं? ये का प्रश्न है, नेट के क्वेश्चन पेपर में आएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने महाराष्ट्र से MSW किया है तिलक यूनिवर्सिटी से, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग से MA HRM किया है, जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट चलाता था। थैंक यू सर। Good evening, sir. I want to ask, इंडस्ट्रीज में जो है सोशल वर्कर का क्या मतलब रहता है, जो उनका प्रोफाइल क्या रहता है? Can you please introduce yourself?
Yes, I'm Samita Panda, first year MSW in DDC. Okay. Actually, I want to ask, what is the profile actually we get in the industries, industrial area? सोशल वर्कर्स के लिए क्या है उसमें प्रोफेशन? बहुत कुछ है. सोशल वर्कर्स पहली नौकरी जो सरकार ने सोशल वर्कर्स के लिए सुनिश्चित की थी 1948 में, 1948 में. तब ना तुम पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, इतना पुराना. 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़िएगा. उसका जो सेक्शन 49, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर. तो अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो नियमावली बनी विभिन्न राज्यों में, उसमें इनवेरिएबली ये है कि जो वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होगा वो एमएसडब्ल्यू होना चाहिए सभी राज्यों में. और उसमें लिखा है कि जहां 500 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होगी. अभी भी होती है बहुत सारी जगह, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में उसमें सोशल वर्कर के साथ स्लैश कर दिया. सोशल वर्कर्स ऑब्लिक सोशियोलॉजी ऑब्लिक ह्यूमन रिलेशन ऑब्लिक लेबर इकोनॉमिक्स. क्यों कर दिया? क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, हमने आवाज नहीं उठाई, हम नहीं बोले. जब हम नहीं बोले तो दूसरे लोग, अगर देखिए आप खाना खाने बैठते हैं और अगर खाना खा रहे हैं और वहां से कहीं से एक डॉगी आ रहा है, आप उसे नहीं भगाएंगे तो आपका खाना खा जाएगा. वैसे ही हुआ. हमने आवाज नहीं उठाई, हमने ललकारा नहीं सरकार को, सरकार ने उसमें ऑब्लिक कर दिया. सोशल वर्क ऑब्लिक सोशियोलॉजी ऑब्लिक लेबर इकोनॉमिक्स. आपके यहाँ भी है, उड़ीसा में भी यही है. आपके यहाँ लेबर इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डिमांड में है तो वहां पे लेबर इकोनॉमिक्स जुड़ गया. लेकिन अभी है. अब लेकिन देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है. पहले क्या था कि फैक्ट्रीज में मैन पावर ड्रिवन फैक्ट्रीज थी, लोग ज्यादा लगते थे. 8-8 हजार 10-10 हजार लोग होते थे एक फैक्ट्री में. अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैक्ट्री आ गई है, 200-250 लोग होते हैं. एम्प्लॉयर कोशिश करता है कि 499 से 500 ना हो पाए, क्योंकि 500 होते ही उसे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा. तो वो कोशिश करता है 490 ही रहे, तो वो 490 तक ही रखता है. लेकिन हमने कभी आवाज नहीं उठाई, हम कभी बोले नहीं. हमारे पास लिस्ट नहीं है कि पूरे उड़ीसा में कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं. है किसी के पास लिस्ट कि वहां वेलफेयर ऑफिसर की जगह निकलेंगे? जी. Hello sir, good evening. जी. Myself Samir Kumar Pradhan from DDC, third semester. Yes. My question is today topic as a social work as a profession in India. Before joining DDC, there have a notification by Government of India that distance course and regular course will be same. But also a letter release that in every school there should be appointed a social worker. I know about the appointment of a social worker in school and mass education. So what is the question? The question is how we can join in school and mass education as a social worker. So you finish your degree first and keep the watch on the advertisement which are coming for a school social worker. Apply there. Second, you should prepare yourself. One thing I tell you, this period is a competitive period. If they will ask you what are the problems of school children, you cannot say with your information of your time. Time has changed. You should know what are the problem of a school child. How these problems are. Now a problem of a school child is that he is more into the social media. He is more into the video. He is more into the TV, which I was a student, I was not, because there was no TV, there was no social media. Now you should know how to deal with a child who is glued to the TV.
दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। सोशल वर्क में नौकरी इसलिए नहीं मिलती केवल कि आपके पास डिग्री है। सोशल वर्क में नौकरी इसलिए मिलती है कि आपके पास हाउ क्वेश्चन का आंसर है। लोग पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में, हाउ यू विल हेल्प ए चाइल्ड हु इज वाचिंग टीवी। Yes, तो आप क्या बोलते? we can dedicated by his type of a teaching style can change, and we also empower him as by different techniques, or attract him by storytelling, or making drama play act in school. He also Very good. interested to listen our course. Very good. So you know, first round में what you did? Currently, I have also encouraged with various schools as a master trainer in Meatless Monday program. हाँ, so very good. This is very good. But first statement you said that we should have to change our teaching methods, Teaching style and teaching method. styles. So where you have pointed out that your teachers are not good to teach you with the new problems. Good. I am Nahin. happy that you can point it out. What I am trying to convey you that every day you need new knowledge to deal with the new problems. Social work is a subject which is fast changing. It is demanded by because of the changing human relation and social realities. Social realities are changing. If you are not able to catch up with that, you will not be able to work. 50 years ago, the families, we do not have problem. Now, every family, you find a lot of problem. Basically, it is the effect of a coronavirus. So many students. Doesn't make a difference, my dear friend, whether it is a coronavirus, whether it is globalization, whether it is technology. Our job is to provide answer. Yeah. We should know the answer, and answer doesn't come automatically. Answer come with the practice, with feedback, with understanding, with gaining knowledge, with asking question. From their knowledge comes, right? Okay, sir. Thank you. I think Samir, you have understood what I have told. Hello. Silja, yes, Silja asked, raised the hand. Am I audible? Yes, you are audible. Very good evening to all of you. Thank you so much, sir. बहुत इंस्पायरिंग और बहुत ही एनर्जाइज फील कर रही हूँ आपको सुनकर। और मैं BSW कर चुकी हूँ, MSW कर चुकी हूँ, 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। अभी करंटली एज ए काउंसलर वर्क कर रही हूँ और टेलीमनस में भी जॉब्स निकली लास्ट ईयर। सो उसमें भी अप्लाई किया। तो चंडीगढ़ में मैंने अप्लाई किया। वहां मैंने क्या देखा सर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल वर्क सबको स्लैश करके रखा हुआ है। अब सबको इक्वल उन्होंने प्रेफरेंस दिया, बट सर जो एग्जाम आया सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी पूछा गया और 10 मार्क्स का सिर्फ 10 अफेयर्स, ये अपना करंट अफेयर्स का पूछा गया। तो सर ये जो चैलेंजेस आते हैं इनको हम कैसे फेस करें? पहले हमें प्रेफरेंस में तो रखा जा रहा है, मतलब हमें रख रहे हैं सर, सोशल वर्क स्लैश सब कुछ दे रहे हैं, पर क्लिनिकल साइकोलॉजी पूछा, मतलब कि हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जा रहा है। और अगर जॉब क्लिनिकल साइकोलॉजी वालों को ही देना है तो क्यों फिर हमारे लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है? बहुत बड़ा चैलेंज आता है। फिर आपने क्या किया? क्या कर सकते हैं सर? बेचारे लोग हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं सर, उन्होंने यही सवाल पूछा। अरे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको उनको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि आपने इसमें क्वालिफिकेशन में सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखा है, आपने सोशल वर्क से सवाल क्यों नहीं पूछे? आपको उनको लिखना चाहिए था। आपको चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए था। आपके कोई पैसे ले रहा है? कुछ पैसे लग रहे थे? ईमेल लिखना चाहिए था। आपको गवर्नर को लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा? अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा आदमी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम सिखाते हैं ना लोगों को, ऑर्गेनाइज द पीपल, है ना? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो संजय भट्ट नहीं लड़ेंगे आपकी लड़ाई। अगर आपने मुझे लिखा होता तो शायद मैंने आपकी आवाज वहां पहुंचाई होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी जब सब्जेक्ट या डिसिप्लिन जब बढ़ता है तो उसमें सबका भागीदारी होती है, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। आपके साथ एक जगह अन्याय हुआ, अगर आपने आवाज उठाई होती तो दूसरी बार जब एडवर्टाइजमेंट निकलता तो शायद ऐसा नहीं होता।
जी बिल्कुल सर, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, बाकी को आपने प्रेफरेंस दिया है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पूछिए, आप साइकोलॉजी भी पूछिए, पर सोशल वर्क भी तो पूछिए। मतलब मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्क हमने पढ़ा है, तो हमें उसका नॉलेज है, तो मैं उसको समझ सकती हूँ। उतना जो हमने पढ़ा है वो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया मैं है। आपकी बट बात बिल्कुल आप मेडिसिन पूछ लेंगे तो वो हमारे लिए आउट ऑफ मैं सिलेबस हो गया। आपकी बात समझ गया, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ अन्याय हुआ। सोशल वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ता है। सोशल वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सेंट्रल पॉइंट ह्यूमन राइट है। सोशल वर्क ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरों में असमानताओं के लिए लड़ता है, सोशल इनइक्वालिटी। अब आपके साथ इनइक्वालिटी हुई, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आपको आपको उन्होंने स्लैश कर दिया। स्लैश माने ये भी होता है, वी ठीक है नीड ना? टू रेज आवर वॉइसेस, वी नीड टू रेज आवर आवाज वॉइसेस। उठानी चाहिए, आपको लिखना चाहिए था कि मैंने अप्लाई किया है। अरे कई बार नौकरियां निकलती हैं, लोग ये नहीं पूछते कि भाई मेरी एप्लीकेशन थी कहाँ चली गई। आपने अगर 100 रुपए का उसके साथ फार्म खरीद के भेजा है, तो वो 100 रुपए कहीं आसमान से नहीं आए थे, आपकी मेहनत की कमाई के थे। आपको पूरा अधिकार है उनसे पूछने का कि मेरे 100 रुपए का मैंने फॉर्म भरा था, 6 महीने हो गए, आज तक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ। हमारे 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 सहयोगी जो है ना, मैं अभी देख पा रहा हूँ आशुतोष प्रधान जी बैठे हैं, इनको मालूम है कि मैं इस तरह के बहुत सारे काम करता रहता हूँ। और मैं आपको सर ये पर सिखा इसके लिए प्रॉपर मार्गदर्शन हमारी जरूरत पड़ेगी ना, अगर मतलब हमें किसी चीज पे नमस्कार अगर सर, आपके पास के लिए करना। आशुतोष जी सर है आई ना, नीड योर आपके पास क्या गाइडेंस। दिक्कत है? विपिन जो टाटा इंस्टीट्यूट नमस्कार। के डीन है, इतने बड़े बड़े लोग आपके पास हैं, क्यों नहीं आप मार्गदर्शन ले सकते? बिल्कुल ले जी सकते हैं आप। वन मोर थिंग सर, जी वन मोर थिंग सर, जी अभी भीमराव अंबेडकर रोहिणी वाला जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर पोस्ट निकली है सोशल वर्कर्स की, 3 जी पोस्ट निकली है, जी जिसमें एमए सोशल वर्क और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये बिल्कुल दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पोस्ट निकली है। जी अब यहाँ पर जब मैं अपना डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूमे सब सबमिट कराने के लिए गई हूँ, उन्होंने सर मुझे रिसीविंग तक नहीं दिया, और जो उन्होंने मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एनवलप लिया और उन्होंने साइड में ऐसे दरकिनार करके डाल दिया, ना रिसीविंग दिया ना कुछ और। मैंने कहा कि आप अपना नाम तो बता दीजिए, कम से कम रिसीविंग तो दीजिए, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? कहते हैं कि सबका एक साथी होगा। अब मतलब लिटरली सर मुझे यही वाइब्स मिली कि किसी का कुछ नहीं होना है पैसे देकर, और ये सिर्फ पोस्ट निकाल दिए और अपने बंदों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके अगेंस्ट में मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे गाइड कीजिए, आई वांट टू टेक स्टेप। अरे आप एक सिंपल सा उनके डायरेक्टर को आप एक चिट्ठी लिखिए, उनको 2 लाइन का मेल लिखिए कि अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, काइंडली लेट मी नो। जवाब नहीं आए, फिर 7 दिन बाद दोबारा लिखिए उनको मेल, फिर जवाब नहीं आए, तीसरी बार प्रिंट करके रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। 2 बार तो मेल लिख दीजिए, तीसरी बार उनको उसमें बोलिए। वो भी कहेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नहीं रखेंगे, इतना ही होगा ना। जी लेकिन उनको ये तो समझ में आ जाएगा ना कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं। अभी ये तो 1-2 लोगों ने सवाल पूछ लिए नहीं। मैं लोगों को अक्सर यही समझाता हूँ कि हमें सवाल पूछने की आदत नहीं है। हमको हमको ये ट्रेनिंग नहीं मिली कि हमें सवाल क्यों पूछने चाहिए। लगता है कि सवाल पूछने वाला खराब होता है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको जरूर सवाल पूछना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के घर में एक चूहा था। तो चूहे के लिए किसान ने जो है ना एक पकड़ने का वो मंगाया चूहेदानी। तो चूहा भागा भागा गया मुर्गे के पास और मुर्गे से बोला, मुर्गा भाई देखो ये किसान चूहेदानी लाया है। तो उस मुर्गे ने कहा, मुझे क्या लाया होगा, तुम फंसोगे, मेरे को क्या। फिर वो बकरे के पास गया, उसने बकरे से कहा, तो उसने कहा मुझे क्या, मैं तो थोड़ी ना चूहेदानी में फंसूंगा। उसने भी इग्नोर कर दिया। अब रात को चूहेदानी में खट से आवाज आई। किसान की पत्नी उठी, तो जैसे उसने चूहेदानी को उठाया तो चूहा तो नहीं फंसा था, गलती से एक सांप उसमें फंस गया था, उसने काट लिया। अब उसकी बीवी हो गई बेहोश। गांव में शोर मच गया, लोग आए, ठीक है ना। तो उसमें उसमें एक जो है ना कबूतर भी था कहानी में। तो वो वैद्य जी ने बोला कि इसको कबूतर का तेल निकालो और इसकी मालिश करो। तो कबूतर की गर्दन मोड़ दी गई, ठीक है। उस दिन में वो ठीक हो गई। ठीक हो गई तो उसने कहा ये अभी बहुत कमजोर है, इसको मुर्गे का सूप पिलाओ। तो मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी गई। फिर कुछ दिन में वो ठीक हो गई। तो गांव के लोगों में जैसे आपके यहाँ होता है ना, भोजन होता है, गांव के सब लोग बुलाए गए, तो बकरे की गर्दन कट गई, ठीक है।
इसका मायने ये है कि अगर मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है तो ये मत सोचिए कि दूसरे का उसमें नुकसान नहीं होने वाला। विपत्ति तो चूहे पे आई थी, लेकिन चूहा तो बच गया, बाकी 3 मर गए। तो अगर कोई संकट में है, आप जैसे और लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी बताइए कि आप भी लिखिए। तो Okay, thank you. I पूछने में think कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये मानना है। और आपको नौकरी मिलेगी आपकी योग्यता पे, आप जी, कितना बिल्कुल। जानते हैं उस पे मिलेगी। मैं 50 जगह इंटरव्यू में गया हूँ, इंटरव्यू लेने। एटलीस्ट सर मौका तो मिले खुद को, एटलीस्ट देखे तो सही हम किस काबिल है। मौका ही नहीं मिल रहा है, ऐसे ही अगर किसी को कर लेंगे तो फिर तो गलत है। अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। मिलनी चाहिए। जी। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि प्रोफेशन है, ठीक है ना। प्रोफेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। जैसे वकालत प्रोफेशन है, लोग नौकरी नहीं करते, प्रैक्टिस भी करते। जैसे नर्सिंग एक प्रोफेशन है, तो नर्स में जरूरी नहीं कि वो नौकरी करे अस्पताल में तभी नर्स होगी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करते। डॉक्टर लोग हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कर सकते हो। शुरू में हो सकता है आपको कोई पैसा ना दे, लेकिन बाद में जब आपकी मशहूरी होगी ना, तो लोग आके आपको बोलेंगे कि भाई मेरे बच्चे का ये हो गया, इसको थोड़ा सा आप कुछ काउंसलिंग कर दीजिए। आप बोलिए लाइए, 1000 रुपये लूंगी मैं। हमारे एक मित्र हैं सुनील वात्सायन जी, ड्रग एडिक्शन के फील्ड में काम करते हैं, नाप्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। टेलीफोन पे काउंसलिंग करने का 2000 रुपये घंटा लेते हैं, लाइन लगी रहती है उनके पास, क्योंकि उनको काम आता है। सोशल वर्क में जिसे काम आएगा वही राजा, जिस लड़की को काम आएगा वही रानी, बाकी नौकरानी। okay, thank you, Silja ji. I think you Thank you so would much, have sir. understood. Yes. Now Yes, sir. I request Miss Rameshwari, please. Yes, sir. Good evening, sir. My question is actually Selija से related है. तो Please introduce yourself first. Okay. My name Rameshwari Guru from first year MSW DDC. So I also faced same thing जो सेलिजा ने फेस किया था। तो मेरा ये हुआ था कि मैंने मेल लिख दी थी, उसके बाद मुझे उनके डायरेक्टर डायरेक्ट कॉल किए थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। मैंने बोला कि मुझे सिलेक्ट मत कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन मुझे हक है कि मैं इंटरव्यू दूं। देन फिर वो बुलाए और मुझे मैंने जॉब भी मिला, लेकिन वो फिर ऐसा मतलब ऐसे बिहेव किए ताकि मैं खुद रिजाइन दे दूं। तो ये सब होता है, अगर हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो दूसरा। देन उसके बाद मैंने रिजाइन नहीं किया, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ था प्रेजेंटेशन जो डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मैं एग्रीकल्चर ओडिशा मिलेट मिशन में काम किया था। तो देन सीडीओ से उनको पसंद आया, तो उन्होंने ऐसे उन्हें लेटर किया कि इस लड़की को जाने मत देना। तो मुझे सोल्यूशन मिल गया, फिर वो मुझे परेशान नहीं करते। तो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, मतलब सोशल वर्क का बेसिक, प्रोफेशनल सोशल वर्क का बेसिक नीड्स क्या है। मतलब हम सब सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसके लिए पैसा भी लेते हैं, लेकिन हम खुद की मदद एक एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले तो वाले मतलब बेसिक जी, हाँ Please specify your question, Rameshwari. Please. Yes. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, उसको सोल्यूशन भी करते हैं, फिर दूसरा कुछ अलग से चैलेंजेस आ जाता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, मतलब पहला था ये था कि हम उसे कैसे निकालें अगर दूसरा कोई ऐसा कोई मतलब सिचुएशन आए। देन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क का बेसिक नीड्स क्या है। मतलब हमारा कुछ बेसिक नीड्स मुझे जाननी है, एक प्रोफेशनल सोशल वर्क का क्या है। देखिए पहला आपने जो भी कहा और जो भी किया उसके लिए तो आपको बधाई, ठीक है ना। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा किया। दूसरा ये है कि जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था ना कि सोशल वर्क का जो सेंट्रल फोकस है वो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानवीय संबंध है। हम लोग मानवीय संबंधों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक। मानवीय संबंध चूंकि सब जगह होते हैं, इसलिए सोशल वर्कर बहुत सारी जगह पाए जाते हैं।
लेबर वेलफेयर में, कम्युनिटी वेलफेयर में, चाइल्ड वेलफेयर में, अस्पताल में, फैक्ट्री में, स्कूल में, जेल में, प्रोबेशन में, ओल्ड एज होम में, सब जगह सोशल वर्कर है। क्यों? क्योंकि सब जगह एक क्रक्स है, वी वर्क विद द ह्यूमन डिग्निटी। हमारी नीड क्या है कि हम लोगों के साथ काम करें, ठीक है। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं उस डायरेक्टर को ये नहीं बोलता कि आप मुझे रिजेक्ट करें या सिलेक्ट करें। मैं कहता इंटरव्यू देना मेरा हक है, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, और मेरा इंटरव्यू के बाद अगर आपको लगता है कि मैं उसके काबिल हूं तो आप मुझे रखिए। देखिए, सब जगह एक क्वेश्चन लगाइएगा, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टेल, हाउ टू इंटरव्यू, हाउ टू आंसर। जितना हाउ सीख लेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। दो ही प्रश्न है सोशल वर्क में, एक वाई, एक हाउ। क्यों और कैसे। क्यों करना है गरीबों की मदद, क्यों करना है किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसकी मदद। हम कहते हैं जाने दो यार, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, हम क्यों बीच में टांग लगाएं। क्यों माने अगर मेरे पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेके आया है तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने के नाते मेरा जो एथिक्स कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये है क्यों। अब कैसे मदद करनी चाहिए, वो है सवाल टेक्निक का, सवाल मेथड, सवाल स्किल का। मेरे को जितना मदद करना आएगा, जितना अच्छा मदद दे सकता हूँ, उतना ही अच्छा सोशल वर्कर हूँ। आज की तारीख में हर आदमी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि जो काम कर सके। डिग्री वाले तो बहुत हैं, बहुत सारे BA हैं जिन्हें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती नौकरी के लिए। आपको आती है क्या? अगर आपको आती है तो आपको मिलेगी। हो सकता है एक आध जगह ना मिले, बेईमानी हो जाए, लेकिन दूसरी जगह मिलेगी। मैंने अपने जीवन में शुरुआत के 16 साल में 15 नौकरियां की। हर समय जेब में नौकरी रहती थी, कभी कमी नहीं पड़ी, ईश्वर की कृपा से। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए कि मुझे अपने काम के प्रति समर्पण था और मैं अपने काम को जानता था कि मुझे अपना काम कैसे करना है। तो आप जिस समय ये समझ जाएंगे कि मेरा काम क्या है, मुझे कैसे करना है, मुझे क्यों करना है, तो आप अपने आप में परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। कई लोगों को ये नहीं पता हमें क्यों करना है, कई लोगों को ये नहीं पता हमें कैसे करना है। मैं तो बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको क्यों करना है, कैसे करना है। गरीबों की मदद क्यों करना है। मेरे से अक्सर लड़के पूछते हैं, सर ये आप हम लोगों को ये गंदी बस्तियों में ही क्यों भेजते हैं, मलिन बस्तियों में ही क्यों भेजते हैं। आप जो है ना वो ईस्ट ऑफ कैलाश में और जो है ना वहाँ जो सफदरजंग एरिया उसमें क्यों नहीं भेजते। हम कहते हैं देखने की बात यह है कि जरूरत कहाँ है। उन गरीब लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम आपको वहां भेजते हैं। जो रईस आदमी है वो तो अपनी सेवाएं खरीद लेगा, उसके पास पैसे हैं, वो तो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएगा, ट्यूशन वाले को घर बुलाएगा, वो घर पे पढ़ा के जाएगा। लेकिन गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसको तो स्कूल में ही जाना है। तो ये सवाल है नीड्स का, किसकी कैसी जरूरतें हैं, हमको क्यों करना चाहिए वंचितों की मदद, हमको क्यों करना चाहिए जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ विभेद हो रहा है, हमें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। उत्तर आपके सामने है, क्यों करनी चाहिए। जो अपनी बात खुद नहीं कह सकता उसी की बात को कहने को तो वकालत बोलते हैं ना। एडवोकेसी क्या होती है। एडवोकेसी होती है कि हम दूसरों की बात को आवाज दे सके। तो हम लोग सोशल एडवोकेसी करते हैं ना, सामाजिक वकालत करते हैं ना। वंचितों की, गरीब आदमी नहीं दे पा रहा ना अपनी आवाज, मोची है, मोची जो जूते सिल रहा है, वो अपनी आवाज उठाए कि वो जूता सिले के शाम को घर में रोटी बन जाए। लेकिन अगर एक पुलिस वाला उसको वहां से हटाता है और डंडे मार के भगाता है, तो फिर अगर आप उसके बीच में ढाल बन के खड़े होते हैं तो आपने गलत थोड़ी ना किया। क्यों किया? क्योंकि आप उन लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते, है ना। चलिए,
Okay, thank you, Rameshwari. I hope you have understood. Now the last question from Sir Singh. This will be the last question. After that, we will conclude. Yes. सर सभी को नमस्कार। मैं शेर सिंह हिमाचल प्रदेश से। मैंने MSW 2020 में पास आउट किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और 2 साल मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में एज ए काउंसलर काम किया। उसके बाद मोबाइल हेल्थ यूनिट हेल्पेज इंडिया में मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। सर मेरा सवाल थोड़ा बेसिक सा है, आई होप आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे। एक्चुअली सर थोड़ा सा जिस चीज को आप मोटिवेट कर रहे हैं उसके लिए मैंने भी थोड़े से प्रयत्न किए हैं। यहाँ हिमाचल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो काउंसलर होते थे वो सोशियोलॉजी से होते थे और साइकोलॉजी से होते थे, बट जब मैं आया तो जो मेंटल हेल्थ की अथॉरिटी है हिमाचल में उनसे मिला और वो MSW वालों को बाहर कर रहे थे कि आप काउंसलर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर मैंने कुछ मूलराज जी हैं उनकी हेल्प से जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो निकाला और वो उनको दिया। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू MSW को अपॉइंट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे जूनियर बैच के लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहे हैं। और सर अब मेरा सवाल सर मेरे मन में ये बार बार उठता है और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि हम MSW करते तो हैं, बट जैसे दूसरे प्रोफेशन है सर, हम MSW में जैसे सर डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, अन्य प्रोफेशन, उनका काम वो जो कर सकते हैं वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। बट जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क में जैसे आपको मैंने बीच में ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भी सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं भी सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल सोशल वर्कर सर कैसे दूसरों से अलग काम करता है? मुझे आज तक ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई कि हम कैसे कहें कि हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं करता है। देखिए इसका जवाब तो आपके पास ही है। सिंपल सी बात यह है, जब आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल उसमें काम कर रहे थे, ड्रग डिटेक्शन सेंटर में काम कर रहे थे, क्या आप रिकॉर्ड रखते थे अपने काम का? क्या आप डॉक्यूमेंट्स बनाते थे? क्या वो डॉक्यूमेंट्स वैसे ही लिखे जाते थे जैसे घर में चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ भी कुशल है वहां भी कुशल होगा, हैं? भैंस बीमार है बाकी सब कुशल है, बच्चा गिर गया उसका पैर टूट गया बाकी सब कुशल है? क्या आप ऐसी चिट्ठी लिखते थे? या आप वहां पर जब आप लिखते हैं तो आपको पता है कि मुझे इसकी हिस्ट्री लिखनी है, केस स्टडी लिखनी है, इसके फैक्ट्स लिखने हैं, फैक्ट्स लिखने के बाद आप उसका थोड़ा सा आकलन करते हैं, आकलन करके आप लिखते हैं कि संभवतः यह व्यक्ति इसलिए ड्रग्स लेता है या इसलिए ये अफीम खाता है कि इसके घर में इसको कोई मान्यता नहीं देता, इसके घर वाले इससे बात नहीं करते, जो भी कारण निकले। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप काम करते हैं और आपको अपने काम करने का तरीका मालूम है तो वो तो भिन्न होगा। सोशियोलॉजी वालों को तो नहीं पढ़ाया गया उस तरह से लिखना, साइकोलॉजी वालों को तो नहीं पढ़ाया गया। अगर आपने फील्ड वर्क किया होगा, अगर आपने फील्ड वर्क रिपोर्ट लिखी होंगी, अगर आपको ये पता होगा कि टेक्निक कौन सी होती हैं, आपको ये पता होगा स्किल और टेक्निक में फर्क क्या होता है, आपको ये पता होगा कौन से सिद्धांत कहाँ पे लगते हैं, तो आप छाती ठोक के कह सकते हैं दूसरों के सामने कि मैं आपसे अलग हूं और मेरे काम करने का जो तरीका है वो आपसे अलग है। इफ माई वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट देन आई बिलोंग टू द प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क। अब चूंकि आप भी थोड़ा सा अधकचरे हैं इसलिए आप इस बात को छाती ठोक कर नहीं कह पा रहे हैं और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि जो भाग्य है उसी भाग्य के भरोसे आपका चल गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप अगर वही केस स्टडी आप पब्लिश करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास 6 महीने पहले आया था, 6 महीने काउंसलिंग करने के बाद मैंने अपने ड्रग एडिक्शन सेंटर में इसको किस तरह से मोल्ड किया और अब आज की तारीख में ये ड्रग छोड़ने की कगार पे खड़ा हुआ है, तो लोग आपको मानेंगे ना कि आप डिफरेंट हैं, आपको ज्ञान है अपने सब्जेक्ट का, क्या आपको नहीं सर है ना? तो देखिए मतलब इस पे एक लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैंने आपकी मूल बात समझ ली और मैंने आपकी मूल बात का जवाब दे दिया। इसका जवाब यह है कि जब आप
को ज्ञान है अपने सब्जेक्ट का, अपने काम करने के तरीके का, तो निश्चित रूप से वो दूसरों लोगों से अलग है। और अगर वो दूसरे लोगों से अलग है तो उसको दर्शाया जा सकता है कि वो दूसरे लोगों से अलग कैसे है। ठीक सर, मेरा इसमें सवाल ये डाउट था कि मेरे साथ ही साइकोलॉजी एमए जो क्वालिफाई है वो भी काउंसलिंग कर रहा है, मैं भी काउंसलिंग कर रहा हूँ। करने दो, और क्या है, मेरे काउंसलिंग करने का तरीका अलग होता है। मैंने अभी आपको 2 कहानियां सुना दी बीच में अपने भाषण में, मेरा यही तरीका है। और मेरा ये तरीका है इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं उन तक मेरी बात पहुंच रही है। मुझे किसी ने नहीं कहा कि कहानी सुनाओ, मुझे प्रदीप साहू ने नहीं कहा था कि बीच में 2 कहानियां सुनाना सर, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका है कि जिस तरह के यहाँ पे लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए मुर्गा और जो है ना वो कबूतर काम करेगा। मेरी बात आप तक पहुंच गई और मुझे पक्का यकीन है इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में मुर्गा और कबूतर याद रखेंगे। और अगर मैं आपको बोलता कि नहीं, we have to believe into the democratic principles and equality is a very important thing and we should do this and we should do that, आधे लोग यहीं भूल जाते, प्रोग्राम खत्म होते। तो यही फर्क है। काउंसलिंग वो क्या कर रहा है साइकोलॉजी वाला मुझे नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। और अगर मेरे पास स्किल्स हैं काउंसलिंग की तो मेरी स्किल्स दिखेंगी। भाई 2 डॉक्टर होते हैं, एक एमबीबीएस एम्स में पढ़ के आता है, एक एमबीबीएस शिमला से करके आता है, लेकिन शिमला वाले की ज्यादा चलती है, एम्स वाले की नहीं चलती। पूछो क्यों? इसलिए कि उसको वहां पता है ना, गांव की भाषा भी पता है, उसे पता भी है कि गांव के लोग क्या खाना खाते हैं, उसको ये भी पता है कि गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसे ये भी पता है कि गांव के लोग पानी कहाँ से पीते हैं। एम्स वाले को तो यही पता है ना कि ये तो बिस्लरी बोतल पीता होगा। फर्क है आप कैसे देखते हैं और आप कितना जानते हैं अपने क्लाइंट्स के बारे में, वो निर्धारित करता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम जिस चीज के लिए ट्रेनिंग की गई है, हमको जिस चीज के लिए ट्रेन किया गया है, अगर हम उसमें डेली काम करते रहें तो निश्चित रूप से हम काफी व्यापक स्तर पे अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर सकते हैं। और जब तक आप अपनी प्रतिभा को सिद्ध नहीं करेंगे तो दूसरा मानेगा कैसे? वो काउंसलिंग कर रहा है, उसने कुछ नए प्रिंसिपल पढ़े होंगे, साइकोलॉजी की कुछ और चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन हमने जो पढ़ा है मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वही है, सेम है। चाहे साइकोलॉजी में पढ़ लो, चाहे एजुकेशन में पढ़ लो, चाहे सोशल वर्क में पढ़ लो, काम करने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति, इसी को स्किल कहते हैं। स्किल माने होता है पर्सनल इफिशियंसी टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नॉलेज, उसको स्किल बोलते हैं। और टेक्निक का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच कैन बी यूज्ड इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, वो तकनीक होती है। ठीक है ना? यस सर। तो ये दोनों में फर्क। सर कैन आई शेयर समथिंग? सॉरी मैं आपका हेलो एक्चुअली मिस सिल्जा, टाइम कम है बट मैं अपना कुछ पर्सनल actually एक्सपीरियंस शेयर you करना have चाहती हूँ already- इसी के रिगार्डिंग। Please, actually, we have other sessions and we other people are also in the row. This will be the last question by Professor Ashutosh Pradhan. Actually, we are also running shortage of time. Please try to understand the situation. Okay, Sudha? Okay, it's okay, sir. Yes. Professor okay. Ashutosh Pradhan अगर can ask प्रश्न है तो last मुझे question. बोलिएगा। We later we नमस्कार can. सर। नमस्कार नमस्कार भाई आशुतोष, नमस्कार। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे आपसे शिक्षा मिला है। लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर प्रोफेसर संजय भट्ट जी ही हैं, और सभी को ये पता होना जरूरी है कि ये जो उपक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, मैं भी इसके पीछे हूँ। प्रदीप जी लीडरशिप ले रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं इस काम को आगे ले जाने के लिए मदद करता हूँ पीछे No, से। sir, actually, he is the brain behind this series, actually. Not, even I am not the leader. Actually, he is the brain, and we together had a discussion and started this series. Thank you. You must also. And what is important is कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स है, या तो विद्यार्थी हैं या ट्रेंड सोशल वर्कर्स, दोज हैव ऑलरेडी डन देयर BSW and MSW,
वी नीड टू कम टुगेदर। ये सारे इश्यूज, किसी एक लॉयर को आप थप्पड़ मार दो, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, रास्ता रोको कर लेंगे, ट्रेन रोको कर लेंगे, हर तरह से वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे सरकार के ऊपर कि उचित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, उचित तरीके से कार्रवाई किया जाए। डॉक्टर को अगर आपने कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया अस्पताल में, तो अस्पताल बंद करवा देंगे। क्या हम एकजुट हैं? क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब डॉक्टर्स ने काम शुरू किया होगा, अपना पेशा शुरू हुआ होगा, तो तब भी उनकी भी यही हालत हुई होगी। तो हमें जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए कि हम कैसे संगठित हो। और अंबेडकर जी ने बड़े अच्छे तरह से कहा है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट ऑर्गेनाइज देन यू कैन नॉट एक्ट ऑल्सो। हम जहां भी है, जिस राज्य से हैं, जुड़े हैं, हमारे जो भी एलुमनी एसोसिएशन है या स्टेट लेवल एसोसिएशन है, उनके साथ सक्रिय रूप से हम मिले, भाग लें और एक दूसरे का सहारा बने, तब जाके हम ये लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम आप सभी को इकट्ठा किए हैं, बड़े भारी संख्या में आप सब लोग आज उपस्थित हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोग साथ में रहेंगे। भविष्य में हम बहुत तरह के लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेक्चर सीरीज भी हम शुरू करेंगे। प्रोफेसर भट्ट सर का धन्यवाद कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का शुरुआत किया, और उनसे भी हम आशा रखते हैं और निवेदन भी करेंगे करबद्ध कि जितने भी इंटरनेशनली रिनाउंड सोशल वर्कर्स है, वेदर दे आर एनआरआईज or they belong to some other country, citizens of other countries, if we can also link them up with this organization and the series which is going on, remote areas में जो लोग हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, वो वर्चुअल मोड के सहारे जुड़ सकते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, प्रोफेसर भट्ट हमें मदद करेंगे ही, लेकिन आप सभी से भी, जो भी प्रतिभागी हैं आज, उनसे भी निवेदन है कि वो और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमने ये जो प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब किया है, इसका कैपेसिटी है 300। अगर 1000 तक भी जाए तो हम और भी बढ़ाएंगे, सब्सक्रिप्शन हम बढ़ाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम कैसे जोड़ सके। तो आप और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, रजिस्ट्रेशंस बढ़ाइए, ताकि हम और बेहतर तरीके से सम्मिलित होके, संगठित होके काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद। बस आखिरी अपील मेरी, आपके जितने भी थैंक यू सर, जितने लोग आपके श्रोता हैं, उनसे मेरी एक अपील है कि इस लेक्चर के बाद अगर वो ये समझते हैं कि समाज कार्य को कोई दिशा चाहिए है, तो उन सबको नाप्सवी का मेंबर बनना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट अगर मेंबर बनेंगे, उनके लिए फीस शायद 1000 रुपए है, लेकिन जब वो पास कर लेंगे तो फिर उनसे कम पैसे लगेंगे और वो परमानेंट मेंबर हो जाएंगे। जो लोग MSW BSW ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डायरेक्ट मेंबर बन सकते हैं, और नाप्सवी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक आपका फोटो चाहिए और एक आपकी मार्कशीट चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वी शुड ऑर्गेनाइज अवरसेल्फ। तो नाप्सवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोग उससे ज्वाइन करें, और मैं आपके उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं कि आप सोशल वर्क को आगे से, सोशल वर्क को ही खाएंगे, सोशल वर्क को ही पिएंगे, सोशल वर्क को ही बिछाएंगे, सोशल वर्क को ही ओढ़ेंगे। लिव विद द सोशल वर्क। सोशल वर्क इज सच ए वंडरफुल सब्जेक्ट that it is every day in our life, in and around, everywhere you can do the social work, and social work is based on certain values, so enjoy those values in your life. Thank you very much. Namaskar, good night. Thank you so much sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. I have to share only 2-3 lines.
So actually today's Thank you, sir. first of all, I must thank Professor Sanjay Bhatt sir. And one more thing I can add to Asutosh sir, as he told, Professor Bhatt was also the evaluator of my PhD thesis. I am fortunate enough to get such a professor to evaluate my thesis. And the inaugural lecture is really wonderful for all of us. And over 110 participants participated in this program. And rightly what Professor Pradhan told, it will be a great achievement for us in the next 5 months. For your information, I let you know all the participants over here, and I must request all of you to connect other people, because this lecture series will continue for the next 5 months in every Saturday at 6:30 p.m. So this is the Sure, right time sir. of us to get connected. As Professor Bhatt told, what we are lacking is the connection, the coordination that we are lacking, and this is can be the platform where we can get coordinated and connected to each other, and definitely we can contribute something in the fraternity of social work, and definitely that will bring change in the society. Thank you once again, Professor Bhatt, to accepting our invitation and inaugurating the program. Thank you all the audience. Again, we Thank will you, meet. Pradeep sir, for organizing this. Thank Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. सर नमस्कार Thank सर। you, sir. नमस्कार सर। Thank you. Thank you, sir. Namaskar. Sir, where can we get the recording of this lecture? Recording we'll share. Actually, you can get it from our YouTube channel, Gyanalok Empowerment Through Knowledge. From the YouTube, since it is very heavy to share with email, you can directly access from our YouTube channel, Gyanalok Empowerment Through Knowledge. I'm writing it. Arun, can you write the YouTube channel here in the message box? Those who have not registered, some of them who might be participating but have not registered, all of you are requested to register so that we develop a database and we can connect with you whenever it would be required. The same YouTube channel will also share through email. Those who have registered, they can access. Thank you, sir. Thank you so all. much. Good night. Yes. Good night, sir. Okay, good night. Good night. समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। ସମସ୍ତେ जोड़िले। Good night, sir. Good night, sir. Thank you. अरुण रेकर्डिंग स्टॉप हो जाइथियो बोधे। गोटे मिनिट आहुरी लॉबी रे आछुंदी बा। लॉबी माने आहुरी आछुंदी माने गोटे मिनिट जॉइन करिया पे। हां से थरा आसिला कोन रेकॉर्डिंग टा तो स्टॉप करि होबो ना। हां गोटे मिनिट right नहीं अछि। केते जण खंडे लॉबी रे अछंदी? रहित हैंग हो गला। कोतिर लैपटॉप रे खोलछ ना? हां लैपटॉप स्टॉप टा मारी परछ ना मारी परनो? नेक्स्ट स्टॉप मारिबी। हैंग हे गला पुणी किन मारियो? नहीं आसला आगो स्टॉप मार दे। राइट।